اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الحمد للہ ونحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا هادی له اشهد ان لا الہ الا اللہ وحده لا شریک له واشهد ان محمدا عبده ورسوله وبعد فان خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر هدی هدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وقال عز وجل بالقرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي يا رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہم نے کل کے پچھلے ایپیسوڈ میں دیکھا تھا، میں نے یہ غلطی کر دی تھی، میں نے اس میں کہا تھا کہ 26 سورہ کہہ کر 26 سورہ نہیں تھا، وہ 26 پارہ تھا جو سورۃ الاحقاف تھا. اور ہم نے کل دیکھا تھا کیسے رسول صلی اللہ علیہ وسلم طائف کی طرف جاتے ہیں سب کو دین کے بارے میں بتانے کے لیے، اور کیا جواب ان کو ملتا ہے، پھر کیسے اللہ تعالیٰ ان کو مدد بھیجتے ہیں. یہاں پر اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہ رہے، دیکھو ہم جب دین کی دعوت دیتے ہیں، دین کی طرف لوگوں کو بلاتے ہیں، تو شاید ہی کچھ لوگ سب لوگ دین کی طرف دوڑتے ہوئے نہیں آتے. ہم لوگوں کو ہر بار اچھا رسپانس نہیں ملتا، ہر بار سب لوگ پازیٹیو نہیں ملتے، کبھی کچھ نگیٹیو رسپانس بھی ملتا ہے. تو یہاں پر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اللہ تعالیٰ بتانا چاہ رہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کا پیغام لے کے گئے، تو وہاں پر وہاں کے انسان ایمان نہیں لائے، لیکن تو کیا ہوا، اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ جنوں کی جماعت تو ایمان لے کے آئی. تو ہم لوگوں کا کام ہے پہنچانا. شاید ہماری بات سے جس کو ہم پہنچانا چاہ رہے وہ نہیں ایمان لاتے ہوں گے، لیکن شاید جو دوسرے سنتے ہیں شاید وہ ایمان لا لے، ہمیں نہیں پتہ. تو یہاں پر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ یہی بتا رہے ہیں، آپ جن جماعت کو دیکھ رہے ہیں، انسانوں کی جماعت کو، وہ ایمان نہیں لائے تو کیا ہوا، جو جماعت کو آپ نہیں دیکھ رہے ہیں، جنوں کی جماعت کو، وہ آپ کے اوپر ایمان لے کے آ گئی کہہ کر اللہ تعالیٰ قرآن میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بتاتے ہیں. تو اس طرح اب رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں کیسے داخل ہوں گے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم مطعم ابن عدی کے پاس جاتے ہیں، پیغام بھیجتے ہیں کہ مجھے تمہاری گارنٹی چاہیے مکے میں داخل ہونے کے لیے. تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم جیسے یہ پیغام بھیجتے ہیں تو وہاں مطعم ابن عدی فوری گارنٹی دینے کے لیے تیار ہوتے ہیں، اور وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتے ہیں، ان کے قبیلے والے، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور وہ پورے قبیلے والے سب لوگ مل کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کعبے کے پاس لے کے جاتے ہیں، اور وہاں پر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کعبے کا طواف کرتے ہیں. پھر سب لوگ یہ دیکھ کر سب لوگ پریشان ہیں، قریش کے لوگ، کیا تم لوگ نے اسلام قبول کر دیا کہہ کر وہ لوگ کہتے ہیں نہیں ہم نے اسلام قبول نہیں کیا، بلکہ یہ ہماری گارنٹی میں ہے. وہ لوگ پوچھتے ہیں کیا یہ تمہاری گارنٹی میں ہے یا پھر تم نے اس کو اپنا لیا، مطلب اسلام قبول کر لیا. تو وہ لوگ کہتے ہیں نہیں ہم اسلام قبول نہیں کیا، لیکن یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہماری گارنٹی کے اندر ہے، تو تم ان کو کچھ بھی مت کرو. تو سب لوگ کہتے ہیں ہاں اگر تمہاری گارنٹی ہے تو ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ بھی نہیں کریں گے کہہ کر یہ بتاتے ہیں قریش کے لوگ. پھر جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ باہر سے قبیلے آتے ہیں، طفیل ابن عمرو رضی اللہ عنہ، یہ الدوس کے قبیلے کے، یہ آتے ہیں اور اسلام قبول کرتے ہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کے بارے میں بتاتے ہیں، اسلام کے بارے میں بتاتے ہیں، یہ اسلام قبول کرتے ہیں، اور یہ اپنے قبیلے والوں کی طرف پیغام لے کے جاتے ہیں اسلام کا. تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے ہیں کہ اللہم اہدنی الدوس کی، اے اللہ تعالیٰ تو ہدایت دے دوس کے قبیلے والوں کو. تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ تعالیٰ دعا قبول کرتے ہیں. پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا قبول ہوتی ہے، اور جب طفیل ابن عمرو رضی اللہ عنہ اپنی قبیلے کی طرف پہنچتے ہیں اور سب کو دین کی طرف بلاتے ہیں، تو بہت زیادہ لوگ اسلام قبول کر لیتے ہیں. اور ان میں سے سب سے بہت زیادہ فیمس صحابہ تھے وہ تھے
ابو हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हा, इनका नाम था अब्दुर्रहमान इब्न सक़्र। तो ये सबसे ज़्यादा हदीसें रिवायत करें। तो ये अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु कहाँ से थे? अद्दौस के कबीले से थे, और ये आगे चलकर मदीने में रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोहबत इख्तियार करते हैं। तो इस तरह होता है। एक रात हम लोग आज अल इसरा वल मेराज का सफ़र देखने वाले थे ना, तो इंशाल्लाह अभी मैं बोलने वाली हूँ वही। तो एक रात मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मे हानी रज़ियल्लाहु अन्हा के घर सोए हुए रहते हैं। तो जिब्राईल अलैहिस्सलाम आते हैं, उन्हें काबे के पास लेके जाते हैं, और वहाँ पे बुराक कहकर एक जानवर होता है वो लेके आते हैं जिब्राईल अलैहिस्सलाम, और उनका कदम वहाँ तक जाता था जहाँ तक अपनी नज़र जाती थी, वहाँ तक उनका एक कदम जाता था। तो बुराक पे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सवार करते हैं जिब्राईल अलैहिस्सलाम, वहाँ से मस्जिदुल अक्सा से मस्जिदुल हराम से मस्जिदुल अक्सा तक लेके जाते हैं बुराक पे। फिर वहाँ तमाम अम्बियाओं को, अव्वल से लेके आखिर अम्बियाओं को जमा किया जाता है, और वहाँ पे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम अम्बियाओं को नमाज़ पढ़ाते हैं। यही वजह है हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इमामतुल अम्बिया कहा जाता है। इमामतुल अम्बिया क्योंकि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम अम्बियाओं की इमामत की है, तमाम अम्बियाओं को नमाज़ पढ़ाया है इमाम बनकर। तो इसीलिए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इमामतुल अम्बिया कहा जाता है। फिर वहाँ से जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने उन्हें दूध और शराब दोनों पेश किया था, लेकिन रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूध को पसंद किया, दूध को चुना जो फितरत है। उसके बाद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये अल इसरा सफ़र कहते हैं, मतलब मस्जिदुल हराम से लेके मस्जिदुल अक्सा का जो सफ़र है उसको अल इसरा कहते हैं। वल मेराज किसको कहते हैं? जब जिब्राईल अलैहिस्सलाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आसमान में लेके गए उसको वल मेराज कहते हैं, यानी कि उठा लेना। तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जिब्राईल अलैहिस्सलाम के साथ मेराज का सफ़र करते हैं। पहले आसमान के 7 आसमान होते हैं, और पहले आसमान में आदम अलैहिस्सलाम थे। तो पहले आसमान का दरवाज़ा खटखटाते हैं, तो वहाँ के फरिश्ते पूछते हैं जिब्राईल कौन है? तो जिब्राईल अलैहिस्सलाम फरमाते हैं ये मैं हूँ जिब्राईल। फिर वो दरवाज़े के पास जो फरिश्ते थे वो फरमाते तुम्हारे साथ कौन है? तो वो कहते हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो वो फरिश्ते फरमाते हैं क्या इनको आने की इजाज़त है? तो जिब्राईल अलैहिस्सलाम कहते हैं हाँ, इनको अंदर आने की इजाज़त है। तो जब दरवाज़ा खोला जाता है, यानी कि फ़रिश्ते अपना काम कर रहे थे, तो उसके बाद अंदर बुलाया जाता है। आदम अलैहिस्सलाम से मिलते हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सलाम करते हैं, अपने वालिद आदम अलैहिस्सलाम से मिलते हैं जो हम सब के वालिद हैं। आदम अलैहिस्सलाम तमाम इंसानों के वालिद हैं। आदम अलैहिस्सलाम से मिलते हैं और वहाँ सलाम कलाम करते हैं, और वहाँ से जब जाने लगते हैं तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आदम अलैहिस्सलाम की अजीब हरकत गौर करते हैं कि जब आदम अलैहिस्सलाम अपने सीधे तरफ देखते तो खुश होते थे, मुस्कुराते थे, और जब अपने दाएं तरफ देखते तो बहुत गमगीन हो जाते थे, रोने लगते थे। तो यही जिब्राईल अलैहिस्सलाम को मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा ये ऐसी हरकत क्यों कर रहे हैं? तो जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने फरमाया ये इनके सीधे हाथ की तरफ ये अपने जन्नती औलाद को देख रहे हैं, जन्नती बच्चों को, और ये दाएं हाथ की तरफ अपने जहन्नमी औलाद को देख रहे हैं। इसीलिए जब अपनी जन्नती औलाद को देखते हैं तो आदम अलैहिस्सलाम खुश हो जाते हैं, और जब अपनी जहन्नमी औलाद को देखते हैं जो दाएं तरफ है तो वो गमगीन हो जाते हैं। फिर उसके बाद दूसरे आसमान पे लेके गया, वहाँ पर ईसा अलैहिस्सलाम और यहया अलैहिस्सलाम थे जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के भाई थे। वहाँ पर भी ऐसे ही सवाल करते हैं फरिश्ते, अंदर बुलाया जाता और वहाँ भी सलाम कलाम करते हैं, और फिर वहाँ से तीसरे आसमान में जाते हैं। और ईसा अलैहिस्सलाम क़यामत की सबसे बड़ी निशानी है। अल्लाह ताला ने उन्हें उठा लिया है, उनको मौत नहीं आई है, उनको अल्लाह ताला ने उठा लिया है, और क़यामत के करीब उनको ज़मीन पर फिर से भेजा जाएगा। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी शहादत की उंगली और बीच की उंगली को करीब रखते हुए कहा है कि मैं और ईसा बिल्कुल इस तरह है, क्योंकि मेरे बाद ईसा के बाद कोई नबी नहीं था, मेरे बाद ईसा के बाद कोई है तो मैं हूँ, और मेरे बाद कोई नबी नहीं है, और मेरे बाद कौन आएंगे? ईसा अलैहिस्सलाम आएंगे। तो ईसा और मैं इस तरह है कहकर शहादत की उंगली और बीच की उंगली मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने करीब रखकर कहा है।
फिर तीसरे आसमान पे लेके जाया जाता, वहाँ पर भी दरवाज़े के पास ऐसे ही सवाल किया जाता है। फिर अंदर लेके जाया जाता है और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को देखा तीसरे आसमान पे, सलाम किया, फिर उनसे बातचीत की। फिर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला ने उनको 1/3 खूबसूरती दे दी है, मतलब इतने खूबसूरत थे, और उनकी खूबसूरती पे अल्लाह ताला ने सूरह यूसुफ़ ही नाज़िल कर दिया। तो उसमें हमें बहुत ज़्यादा नसीहतें मिलती हैं सूरह यूसुफ़ में। इसके बाद चौथे आसमान पे इदरीस अलैहिस्सलाम होते हैं, वहाँ पर भी दरवाज़े पर फ़रिश्तों से ऐसे ही सवाल करते हैं। जब अंदर जाते हैं तो इदरीस अलैहिस्सलाम से मिलते हैं, फिर सलाम कलाम करते हैं। फिर 5वें आसमान पे जाते हैं, वहाँ पर भी दरवाज़े के पास ऐसे ही फ़रिश्ते सवाल करते हैं। अंदर जाते हैं और वहाँ पर हारून अलैहिस्सलाम से मिलते हैं, सलाम कलाम करते हैं। फिर 6वें आसमान पे जाते हैं, और 6वें आसमान पे कौन होते हैं? 6वें आसमान पे मूसा अलैहिस्सलाम होते हैं, और वहाँ पर उनसे सलाम कलाम करते हैं। और कहा जाता है कुछ रिवायतों में, जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चले जा रहे थे तो मूसा अलैहिस्सलाम रोने लगे, और कुछ रिवायतों में कि वो गमगीन थे। तो जब उनसे जिब्राईल अलैहिस्सलाम से पूछा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो गमगीन क्यों हैं, तो बताया गया कि मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि मुझसे ज़्यादा, मतलब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मती सबसे बड़ी उम्मत होंगी क़यामत के दिन, यानी कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद अगर कोई बड़ी उम्मत होगी वो मूसा अलैहिस्सलाम के बाद मूसा अलैहिस्सलाम की होगी। और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले सबसे बड़ी उम्मत किसी की थी, तो बनी इसराइल की थी, मूसा अलैहिस्सलाम की थी, इसीलिए वो गमगीन हो गए कहा जाता है। फिर 7वें आसमान पे जाते हैं, 7वें आसमान पे इब्राहीम अलैहिस्सलाम होते हैं, और वहाँ पे भी दरवाज़े पर सलाम कलाम, दरवाज़े पर ऐसे ही सवाल जवाब होते हैं। फिर अंदर जाते हैं तो यहाँ अपने वालिद इब्राहीम अलैहिस्सलाम से मिलते हैं, जो इब्राहीम अलैहिस्सलाम जब काबे की तामीर कर रहे थे, जो दुआ करें उनके दुआ का नतीजा देखते हैं इब्राहीम अलैहिस्सलाम जो उनके तरफ आ रहा है, कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम दुआ करते हैं कि रब्बना वबअथ फ़ीहिम रसूला, ऐ मेरे रब मेरे इन औलाद में से तो रसूल को भेज कहकर, तो वो रसूल को आज इब्राहीम अलैहिस्सलाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शक्ल में देख रहे हैं, और वहाँ उनसे सलाम कलाम करते हैं और कहते हैं कि ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ए मेरे बेटे, तुम्हारी उम्मतियों को मेरी तरफ से सलाम कहना, यानी कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने हम सबको सलाम किया है, सलाम भेजा है, तो हमें भी उनका सलाम का जवाब देना चाहिए। वालेकुम अस्सलाम या नबी अल्लाह, वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि या अबा इब्राहीम कहकर। तो फिर उसके बाद वहाँ पर इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जन्नत बहुत वसी है, बहुत बेहतरीन और बहुत अच्छी जगह है, और वहाँ पे बागात कैसे लगते हैं? सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह, ये कलिमात से वहाँ के बागात उगते हैं, वहाँ पे हमारे नाम के दरख्त लगाए जाते हैं, तो ये कलिमात से। फिर वहाँ पर अल्लाह ताला ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम को बदला दिया है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने दुनिया में अल्लाह ताला का घर तामीर किया ना, बैतुल्लाह, तो अल्लाह ताला ने उनके लिए वहाँ पर बैत मामूर तामीर करके दिए थे, जो बैतुल मामूर वहाँ पर एकदम काबे के जैसा था। और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, काबा जो ज़मीन पे जहाँ पर है ना, एग्जैक्टली सेम पोजीशन पर सीधा ऊपर आसमान पे एग्जैक्ट सेम वही पोजीशन पर बैतुल मामूर है, जहाँ पर यहाँ पर जो इब्राहीम अलैहिस्सलाम तामीर करके गए थे बैतुल्लाह, इसकी तवाफ़ कौन करते हैं? इंसान। और वहाँ पर जो अल्लाह ताला उनको बदला दिए इब्राहीम अलैहिस्सलाम को बैतुल मामूर तामीर करके, वहाँ पर उस बैतुल मामूर का तवाफ़ कौन करते हैं? वो बिल्कुल काबे जैसा है, एकदम काबे जैसा है, और उसका तवाफ़ कौन करते हैं? फ़रिश्ते। और एक बार में 70,000 फ़रिश्ते तवाफ़ करते हैं, और जिनका एक बार नंबर आ जाता है, मतलब जो एक बार तवाफ़ करते हैं फिर से उनका नंबर नहीं आता है, मतलब सोचिए कितने फ़रिश्ते होंगे, 70,000 सिर्फ एक बार में, और क़यामत तक ऐसे ही तवाफ़ करते जाएंगे, और जो पहले फ़रिश्ते तवाफ़ किए थे उनका नंबर क़यामत तक नहीं आएगा। तो इतनी तादाद के हैं फ़रिश्ते, बहुत ज़्यादा तादाद में। उसके बाद इसके आगे लेके गया मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सिदरतुल मुंतहा तक, वहाँ तक जिब्राईल अलैहिस्सलाम का एंड पॉइंट था, उसके आगे जिब्राईल अलैहिस्सलाम नहीं जा सकते थे। वहाँ पर अल्लाह ताला ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नमाज की तोहफ़े दिए थे,
اور نماز کے تحفوں کے بارے میں پھر اس کے آگے کیا ہوا تھا ہم لوگ انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں دیکھیں گے. جب تک سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. جب تک اللہ تعالیٰ ہمیں زندہ رکھے، اسلام و ایمان پہ زندہ رکھے، اور جو اس معراج کے سفر میں اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نمازوں کا تحفہ دیا تھا، بالکل ہمیں اسے تحفہ سمجھ کر اپنی زندگی میں عمل کرنے کی اور اس کو خشوع اور خضوع کے ساتھ عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور اللہ تعالیٰ جیسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اسرا مطلب مسجد الاقصیٰ لے کے گئے، ہمیں بھی اللہ تعالیٰ ہماری اپنی مقدس مسجدوں میں نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین اللہم آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ خیرا کثیرا.